A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Right now, dear students, I am going to start chapter 4, Pakistan and the Modern World. Pakistan and the Modern World by Liaquat Ali Khan. It is not like that Liaquat Ali Khan has written and he is the author. Actually, this chapter is composed by the speeches of Liaquat Ali Khan, but he had delivered in his visit to United States America at the University of Kansas, where he was invited to confer an honorary degree of law. We'll be describing more. And the time period is 1st October 1905. He was born and died 16th October 1951. And his death was not a natural death, my dear students. A fanatic, had fired him during the procession in Rawalpindi. These are the questions that would be satisfied after my lecture, my dear students. Briefly state main reason given by Liaquat Ali Khan for the Muslims desire not to continue living in a united India. क्या लियाकत अली ख़ान ने असबाब बताए हैं मुसलमान जो कि यूनाइटेड इंडिया में यानी कि इंडिया में हिंदुओं के साथ या दूसरी कौमों के साथ मुत्तहिद होकर नहीं रहना चाहते थे, तो उनकी क्या वजूहात थी. The other question, what does he state the real meaning of freedom for the common man to be? और वो ये कहते हैं कि आम इंसान के लिए आज़ादी का सही मतलब क्या होता है, हकीकी मतलब क्या होना चाहिए या क्या होता है. What is meant by synthesis? Synthesis का क्या मतलब है? According to Oxford Dictionary, synthesis means the combination of two things, right? And we'll be telling you some more. What is the synthesis that he believes is necessary for Pakistan to achieve? और वो क्या synthesis था जो वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है हासिल करना, to live in a modern world. And the next question, what does he put forward as the two main duties today of the western world? मगरबी दुनिया की आज दो क्या अहम जिम्मेदारियां हैं, क्या फ़राइज़ हैं तमाम दुनिया के लिए. These questions will be satisfied during my lecture, my dear students, and let me make you understand some vocabulary what I have written, so that when you read the chapter you can have the help of these words. And some words you can find at the end of the chapter. Here some words are written like that. The meaning of those words you can use them as well, and I have given some more. Voyage, a long journey on water. पानी पे समंदर पे सफ़र को voyage कहते हैं. Monotheist, believer in only one God. वो जो सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखे monotheist कहलाता है. Polytheist, believer in many gods. वो जो कई खुदाओं पे यकीन रखते हैं वो पॉलीथीस्ट कहलाते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में होता है और डिफरेंट अदर. एक्लिप्स, ब्लॉक द लाइट एंड कॉज एक्लिप्स. एक्लिप्स एक बॉडी के सामने दूसरी बॉडी आ जाती है और जो पिछली बॉडी को बिल्कुल हाइड कर देती है, इसको भी कहते हैं एक इम्पॉर्टेंस. अपने आप की जो बॉडी सामने होगी उसकी इम्पॉर्टेंस रहेगी. पेस, स्पीड, right dear student? So let me read some of the paragraphs to you so that you can understand the chapter. Okay, as I have already told you that these are the speeches, these are the collection of speeches of Liaquat Ali Khan, what he had delivered on the occasion of conferring an honorary degree at Kansas University. So, in the beginning, he has told some formal words like, in conferring a degree upon me, you and the University of Kansas City have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you. For my address today, I have advisedly chosen the subject of Pakistan and the modern world. अब वो ये कहते हैं कि मैं हमारे लिए बल्कि मेरे लिए मेरे मुल्क के लिए एजाज़ है कि आपने मेरे वतन को ऐसा मौका दिया. वो ये नहीं कहते कि मुझे दिया, ही सेज दैट कि मेरे वतन को मौका मिला और मैं अपने मुल्क की बात करूँगा. पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान और जदीद दुनिया एक तकाबली नज़रिया हो सकता है. I have done this for two reasons. In the first place, I am conscious of the fact that you have been kind enough to select me as the recipient of your recognition in order to do honor to my country rather than to
rather than to reward me for my inadequate merits, it is fitting therefore that in expressing gratitude for your generosity, my country more than myself should speak to you on this occasion. और वो यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, दावत दी और मौका दिया, और यहाँ मेरे वतन को आपसे एड्रेस करने का, दुनिया से एड्रेस करने का मौका मिला. यही वजह है कि मैं अपने वतन की बात करूँगा, अपनी नहीं. दूसरा रीज़न जो कि बहुत ही डेप्थ में है, जो कि बहुत ही प्रोफाउंड रीज़न है. इन द सेकेंड प्लेस वी लिव टुडे इन एन एरा ऑफ वाइडनिंग हॉराइजन, एंड इट इज़ इन सेंस एन एरा विच new countries are being discovered. More than 4 centuries ago, great explorer from Europe voyaging out to discover the continent from which I hail, discovered your great land. You, with your growing interest in the affairs of the world, are poised in the moment of history when you cannot but carry that voyage forward, if I may be permitted to say so. That discovery of Asia has not yet been accomplished. वो ये कहते हैं यहाँ पर कि दूसरी वजह ये है कि दुनिया का उफ़क़ फैल रहा है. उफ़क़ फैल रहा है, इसका मतलब है दुनिया बड़ी होती जा रही है, नए नए ममालिक डिस्कवर होते जा रहे हैं. ठीक है ना. लाइकवाइज आपके ममालिक से मुसाफिर गए और उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए, और ये कॉन्टिनेंट भी जहाँ से मैं आया हूँ, यानी कि एशिया को डिस्कवर किया. और वो यही बात करते हैं कि एशिया की डिस्कवरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और अगर आप मुझे इजाज़त दें एक बात कहने की, तो एशिया की डिस्कवरी तो अब शुरू हुई है. It has only just begun. In speaking to you, I trust I shall be of some assistance to you in discovering a part of Asia which I know well and which is very dear to me, and in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours. और वो ये कहते हैं, इसमें मुझे यकीन है कि मैं आपकी मदद करूँगा एशिया को डिस्कवर करने में और जानने में एशिया के बारे में, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें आपके लोग या आपके ममालिक और हमारा मुल्क और आपका मुल्क कुछ सेम डेस्टिनी पर हैं. जैसे कि वो बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ अ न्यू स्टेट, पाकिस्तान एक नई रियासत है, और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी, और ज़्यादा कहना ये सही होगा कि एक नई जमहूरियत है, और जमहूरियत होने की हैसियत से अभी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. एज अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट येट 3 years ओल्ड, अभी तक सिर्फ 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं. देयर वॉज अ टाइम व्हेन योर कंट्री वेयर द ट्रेडिशन ऑफ सिविल लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी हैव नॉट टेकन सच फर्म रूट्स. एक वक्त ऐसा था जहाँ शख्सी आज़ादी और जमहूरियत आपके मुल्क में भी इतनी मजबूत जड़ें नहीं बना चुका था. वॉज अ न्यू एंड यंग डेमोक्रेसी, एंड द मेमोरी ऑफ योर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज येट फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ मैन. और एक नई जमहूरियत थी, और इतनी भी पुरानी नहीं है. अगर अभी लोगों से बात की जाए तो उनके जहनों में वो यादें अभी भी ताज़ा होंगी. If you can in your imagination reconstruct those times for a little while, you will in many ways be reading the history of Pakistan and of the first 3 years of its new life. और अगर आप समझ सकते हैं तो पाकिस्तान की नई कंट्री की हैसियत से पाकिस्तान की तारीख़ ये 2-3 सालों की अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी आपकी जो पिछले सालों की तारीख़ रही है. टिल 3 years ago पाकिस्तान वॉज ओनली एन आइडियल एंड अ लॉन्गिंग. 3 साल पहले तक पाकिस्तान सिर्फ एक ख़याल था, एक चाहत थी, मतलब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्लानिंग ही हो रही थी. But now, after 3 years, you can see the country, he says. Okay, in South Asia, where present-day Bharat and Pakistan were situated, and where the British held away, और जनूबी एशिया में जहाँ के पाकिस्तान और भारत एक साथ रहे और जहाँ के बरतानिया ने हुकूमत की. There lived 100 million Muslims who for centuries had made this part of the world their homeland. और वहाँ पर 100 मिलियन लोग की बात कर रहे हैं, 100 मिलियंस लोग मुसलमान वहाँ रहे और जिन्होंने काफ़ी अरसे से इस खित्ते को अपना वतन बनाया हुआ था. और हाँ, दे लिव साइड बाई साइड विद 300 मिलियन अदर्स, और वो 300 मिलियन दूसरे लोगों के साथ रहे जिनमें ज़्यादा तादाद हिंदुओं की रही थी. मोस्टली हिंदू हु हैड कम टू दिस कॉन्टिनेंट इन एन अर्लियर एरा. ज़्यादातर हिंदू थे जो इस खित्ते में और बहुत ही पहले से आए हुए थे. इसका मतलब है ही एडमिट्स कि ये उनका भी वतन है
और चूँकि मुसलमानों ने भी इस खत्ते को अपना वतन, अपना होमलैंड बनाया, तो ये इनका भी वतन है। तो बात ये नहीं है कि किसी को निकाला जाए, बात ये है कि हुकूक किस तरह से डिवाइड किए जाए। As the day of freedom for these 400 million people drew near, it became increasingly obvious that at the end of the British rule, the 100 million Muslims would have to live their new life as a perpetual political minority. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि बरतानिया के जाने के बाद इस खित्ते में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है कि अगर वो मिनॉरिटी की हैसियत से रहते हैं तो दैट वुड कॉल्ड अ परपेचुअल मिनॉरिटी, यानी कि एक परेशान कुन अक़लियत की हैसियत से खुद भी परेशान रहेंगे अपने हकूक़ के लिए, और जो गवर्नमेंट में होंगे उनके लिए भी परेशानी होगी इस अक़लियत को संभालना। तो वो यही बात करते हैं। लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड द हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज हैड टॉट देम दैट अंडर अ dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to the Muslims not freedom but merely a change of masters। और एक लंबे तजर्बे के बाद जो मुसलमान और हिंदुओं ने साथ साथ बरतानिया की हुकूमत के दौरान गुजारा, तो इस लंबे तजर्बे के साथ उन्हें एहसास हुआ, उन्हें पता चला कि अगर मुसलमान इस खित्ते में रहते हैं और बरतानिया की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तब भी मुसलमानों के लिए आज़ादी नहीं होगी, क्योंकि हिंदुओं की बड़ी तादाद उनके लिए आज़ादी का सबब नहीं हो सकती। हिंदुओं की बड़ी तादाद के आगे वो आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो क्या होगा उनके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर, मतलब मालिक बदल गया। पहले बरतानिया हुकूमत करता रहा, फिर हिंदुओं की हुकूमत आ जाएगी, तो मुसलमानों की शख्सियत वो दबती चली जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, आई एम फिनिशिंग हियर नाउ, will be continue in my next lecture. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz.